एक बार वो शिरडी साईं बाबा के पास एक आरआरसी हुआ था, उसमें हम गया था, गोपाल साहब किधर है, गोपाल साहब के साथ बैठ के, हाँ इधर हम लोग बात करते थे। एक बार साईं बाबा के पास मीटिंग हुआ था, अभी जगन्नाथ जी के पास, भगवान के पास आपका जब होता है मैं उधर पहुंच जाता। एंड द अदर वन इज, अपना क्लाइंट का ग्रीड रहता है, अपना भी ग्रीड रहता है, उसको कैसा कम करें। So that is, we have to follow what Mahatma Gandhi has stated. There is enough in this world for human needs, but not for greed. So ये जो human needs का ही हम करेंगे, and the avoidance is allowed by law, but not evasion. And let us all think that evasion में हम लोग पार्ट नहीं लेंगे क्लाइंट के साथ, उसका ग्रीड को डाउन करेंगे, अपना ग्रीड जो है उसको बोलेंगे देखो बाबा इवेजन में हाथ लगाता है तो हम ज्यादा ले जाते हैं, कुछ है बहुत ऐसा लेने के, पर अवॉइडेंस के लिए वो टैक्स प्लानिंग होता है, प्लानिंग का मैं खाली मेरा फीस दूंगा जो कि वो मेरा प्राप्य है। दैट इज व्हाट दीज 3 sentences I wanted to say, these quotations. Then वो तीनों जगह पे जो डिस्कशन चलता था, I went there and I was very happy the way it was going on, as if कुछ जगह में तो इंडिया पाकिस्तान का जैसा मैच होता था ना, ऐसा ही हो रहा था, और वॉइस धीरे धीरे बढ़ रहा था, और मैं उठ गया उधर से, थोड़ा सा उधर भी जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा देकर चला आएगा। It was very interesting to see the people talking, people so much involved, so it has aroused, जो जोश आ गया ना, वो बहुत मजेदार था। इसीलिए I am very grateful for having been given the opportunity to meet all of you and speak before. Then I have discussed with the group leaders and their consensus, whatever has come, or if consensus has not come, then what issues have arisen. We go through the case study number 1, that is the capital gains. तो capital gains में हमारा जो issues था उसके ऊपर whatever discussions have taken place, that is whether the benefit of section 54 would be available even if X has another house. The consensus has been yes, it will be available. 2 घर होने से भी हमको मिलेगा, 50 घर होने से भी मिलेगा। एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर बेचेंगे तो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उधर बोला नहीं है कितना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होने से आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। So that is why there was consensus, even though there is restriction under section 54F. But 54 नहीं। Then next point was section 54 and section 54E. उसमें our question was whether benefit can be claimed both under these two. इसमें आपका direct judgment ही है NCIT versus Deepak S. Bheda, 52 SOT Mumbai. The benefit of 54F and 54EC उसमें दिया है। जब 54F and 54EC मिलता है, 54 and 54EC ये दोनों सेक्शंस इंडिपेंडेंट है। वो बोला नहीं वो मिलने से ये नहीं मिलेगा बोल के, उधर 50 लाख डाल दो और उसके बाद जितना रह गया उसमें घर में डालोगे, फिर तो दोनों ही एप्लीकेबल बोल के एक्टिव बोल दिया। सो इट्स नॉट एन इशू। देन आया if the sale proceeds have been deposited, तो कैपिटल गेन्स में डिपॉजिट किया गया, whether benefit under section 54 would arise even if X has not opened deposited money, तो CGS में नहीं किया 31/7/2012 तक, and due date of filing return, तो and whether benefit will be if investment is made there. So ये क्वेश्चन आया है कि अगर रिटर्न फाइल किया है लेट में एंड 139(4) में फाइल किया है, सो वेदर द बेनिफिट कैन बी अवेलेबल even if X is not open deposited the account and the due date of filing return. Okay. The benefit under even if investment is made through borrowed funds. So purchase or construction talks about वो जो 139 and 139(4) का जो dispute है, 139(1) is related to specifically the bonds वगैरह,
उधर क्लियरली दिया है द स्पेसिफाइड डेट इज टू बी बाय द टाइम यू आर सपोज टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). बट घर जो आपको करने का है दैट इज 2 years and 3 years and 1 year before, वहाँ ओनली 139 का बात करता है। जब सेक्शन 139 का बात करता है तो then there is no question of telling it is 139(1), and there are case laws related to it directly. That is again Jagriti Agrawal, Punjab and Haryana, and again another Jagtar Singh Chawla. So this is the even if the full investment has been paid, possession of the next was possession नहीं मिला और पैसा दे दिया तो whether it will be available or not. So once you go through the make the contract and give it to a रहेगा जिसको भी contract करके पैसा दे दिया but possession नहीं मिला, then also the benefit is available. Then investment in house property made through borrowed funds. Borrowed funds में the conclusion is that अगर government बोलता है कि you can invest in a property before selling, 1 year before selling you can make, पैसा किधर से आएगा? बेचने से पैसा आएगा, उससे पहले अगर खरीदना है तो किधर से लाएगा मैं? किधर से भी borrow करेगा। So almost act as provided, yes, borrowed funds. That is how there are case decisions in favor of this, that yes, borrowed funds में भी आप utilize कर सकते हैं। Then आपका एक केस में करा था which I just saw, वो मिलन शरद रुपाल versus ACIT 27 SOT Mumbai, benefit under 54 would not be available if the investment of new residential property is made from borrowed funds. But I do not agree with this because enough decisions are there, and logically if we read the act we find that एक साल पहले करना है तो किधर से करेगा? That's why I beg to differ in this decision of. Otherwise we have various decisions including Mumbai stating that yes, borrowed funds can be utilized. Then comes wealth tax, or in wealth tax it was like this, the point of contention had been that दो घर होने से एक घर ही आप अपना रेसिडेंस के लिए बोलेंगे, and दूसरा if it is let out for more than 360 days, then only it will not be liable. So if it is not let out, then it will be liable to wealth tax, the second house. Then उसका valuation क्या करने का, तो that will come. The other problem which are there is the appurtenant land in that Pune. तो पुणे में बड़ा लैंड था, उसमें घर था, घर के साथ आधा लैंड हम बेच दिए, उसके बाद आधा लैंड रह गया। So there it comes, कितना बड़ा घर था, कितना बड़ा लैंड था, और वो लैंड का व्हाट पोर्शन, सपोज इट इज लाइक अ फार्म हाउस, छोटा कॉटेज बना इधर का कॉटेज जैसा, और लैंड ऑलमोस्ट उसको 1-2 एकड़ जमीन के अंदर दे दिया। Then it may so happen that it may lead to litigation stating that तुम्हारा इरादा वो कॉटेज को बेचना नहीं था, पूरा लैंड को बेचने का था, so it will go into dispute. But बाकी आधा लैंड जो रह गया तो liable to tax हो जाएगा as far as wealth tax is concerned. Also that will not be coming under this because जब बेचेगा तो 54F में आने वाला है। And as far as this is concerned, it will be a reasonable portion of land अगर वो बिल्डिंग खड़ा है, और as per the law of the municipality etc. कितना जगह पे कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से it can be taken by the income tax officer. Otherwise he will tell that you have sold additional land actually along with building, मैं बिल्डिंग का अलग कर दूंगा लैंड का, ये it can go into dispute. Then after the sale of Pune house, the second house should be exempt under above mentioned section. And अगर 2014-15 में ये amendment जो किए हैं अपना जेटली साहब, that is not going to affect because हम घर बेचे हैं और घर खरीदते हैं, so it's not going to, because 2 amendments which Mr. Jaitley has brought and it is retrospective,
Even though he said it's not retrospective, it's related to foreign country में अगर खरीद लिया तो allowed नहीं है. In assessment year 15-16, many people would have purchased between April to July 9 तारीख, and they will be liable to taxes. So, and one house, people used to say मैं एक घर खरीदा और इधर से इधर तोड़ा, ऊपर गया, तो that became one house. और people said मेरा सबके लिए, मेरा फैमिली इतना बड़ा है तो मैं वही बिल्डिंग में 4 ठो ले लिया एंड मेरा फैमिली रहने के लिए, अभी वो one house बोला. So that those are the things which are actually affecting. But here we have just put our money in Calcutta and our joint property which is there. So houses are there. Since it is totally residential, this 2014 budget will not affect us. So this is as far as our case number 1 is concerned. केस नंबर 2 को जरा पीछे लेके, इसका जो 14A है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. सो इसीलिए वी डिसाइडेड दैट उसको टाइप ऑफ वी आर डेफरिंग इट टू लेटर पीरियड. और केस स्टडी नंबर 3 इज, you know, it is really speaking, this case, even though I have not put it here, while discussing I told this is related to our own state and the company POSCO, and which actually came from Korea. 200 करोड़ रुपया लाया और इधर रखा फिक्स्ड डिपॉजिट में, and then they are waiting, they were waiting, they are waiting, they will be waiting if they want to do the project of तो उसमें क्या हुआ, all of the money is put in fixed deposit, land is not coming, environment clearance is not coming, forest clearance is not coming, pollution control, या माइंस नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा फिर? पान वाला बोलता है ये जगह नहीं देगा, जब तक वो पान वाला जगह नहीं देगा तब तक उसका पोर्ट नहीं होगा, और पोर्ट से कन्वेयर बेल्ट लगा नहीं सकता उसका फैक्ट्री, जो कि उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में था वो पोस्को प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. Now, because of this, they said, Mr. Sabat, we have not come here to earn interest income. 200 crores we came to buy the land and then set up initially something, boundary walls, etc. Why I will pay tax on this amount? I would not have brought if this is the situation it would have been. Then, fortunately, हम ऐसा ढूंढते कि इसको कैसा करेंगे. Then Indian Oil पानीपत केस हमको मिला. तो इंडियन ऑयल वी हैव गिवन दैट साइटेशन. इंडियन ऑयल पानीपत में ऐसा ही हुआ, लिटिगेशन में चला गया, लैंड नहीं मिला, उनका प्रॉब्लम्स हुआ, तो दिल्ली हाई कोर्ट आफ्टर ड्यू डिस्कशंस दे हैव डिस्कस्ड द टूटीकोरिन केस, दे हैव डिस्कस्ड द बोकारो स्टील केस, सुप्रीम कोर्ट का दोनों को, एंड आफ्टर डिस्कसिंग द वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व इन सेटिंग अप ऑफ ए प्रोजेक्ट, दे मेंशन दैट इट इज नॉट फेयर to tax the income which is coming from fixed deposit. It will go for a deduction from the project cost. And this is what we argued in the tribunal, and we won here in this tribunal related to this issue. And anyhow, the tribunal followed the Indian Oil Panipat case only. And they said whenever such type of situation, India में तो बहुत आएगा, अगर जीतना है तो यही इशू करके फाइट करना है, क्योंकि लैंड हैज बिकम सच ए स्कैर्स कमोडिटी. लैंड बिल पास होगा या नहीं होगा किसको मालूम नहीं है. जॉइंट सेशन मोदी साहब बुलाएगा बोलते हैं, केजरीवाल इफेक्ट इज सो मच दैट जॉइंट सेशन में क्या होता है वो भी हम लोग को मालूम नहीं है. सो दैट इज व्हाई अभी पुटिंग अप ऑफ ए प्रोजेक्ट इज नॉट दैट इजी. एंड जस्ट लाइक आरिफ साहब कल बोला है एचडीएफसी का कि बिजनेस ईज में जो होने का है, इजी नहीं है, खाली बातचीत में हो गया 9 महीना और अभी कुछ दिखाई नहीं देता ईज ऑफ बिजनेस. लेट अस सी 28. सो ये इंडियन ऑयल पानीपत वाला केस को लेकर हम लोग वी हैव गॉन फॉर दैट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन पुट हियर आर related to expenses. इसमें ऊपर का पॉस्को है और नीचे का एक्चुअली टाटा मोटर्स. वेस्ट बंगाल में जो दीदी हैरान किया टाटा को, उसके बाद टाटा ने ये सब एक्सपेंडिचर खर्चा किया, सूट भी फाइल किया है, हम लोग को पैसा दो, हमने बहुत सारे हमारा प्रॉब्लम हुआ है. There have been really, you know, all the
members have gone into it, what is it? Is it revenue expenses? Is it a capital expenditure? And if the project is like POSCO, then what will happen? If it is actually Tata Motors, which is in operation and manufacturing various, ये नानो भी और किधर भी वो बनाता है, so ये नानो के लिए वो expansion करता था और नानो निकालने के लिए, then what will happen? So it has been that accounting entry के ऊपर, because I think accounting entry is also the questions, क्या journal entry मारने का है अपना books पे. So ये जो 20 lakh expenses on account of demolition of the present plant and compensation paid to machinery supplier and building contractor क्योंकि cancellation हो गया project in that West Bengal में, and litigation expenses and expenses on shifting of plant. A, B, C, तीनों में mostly people have stated it is a type of revenue expenditure if the project is ongoing. Some people said business is deemed to be type of setup, so ये profit and loss में ही debit मारेगा. अरे कोई ITO तो ये allow नहीं करेगा because the project is just if it is only the project is under construction and if it is part of the total, then आप revenue में डालो and then claim करने का. Otherwise it becomes a totally capital loss as far as ये तीनों पहला 3 item है. Now चौथा item है which is supposed to be the machineries. And the plant को shift करते 2 crores of rupees have been spent. So what is to be done? वहाँ it has come that we have incurred expenses up to putting up of the plant when the goods have come to the West Bengal. Now it is going to Gujarat. तो ये 2 crore को it cannot be a मेरा capital loss. It can go to capitalization of expenses for the project because I have not abandoned the project. Abandon a project means ये पूरा capital loss हो जाता है. तो इसीलिए वहाँ लेता हूँ तो ये 2 crore को मैं debit मार सकता हूँ. Anyhow, all these will come to profit and loss account because as per law you are required to prepare even during the project construction period a P&L. वो P&L में आएगा. उसमें से how much is to be taken to pre-operative expenses and incidental expenditure during construction that is to go. So maybe we will take this. Balance will be a loss for us. Question came is 100 crore के ऊपर. 100 crores का क्या होता? Now 100 crores, as such it's a big figure. Land नहीं दिया बोल के हम ये करते हैं. The consensus was that it depends. What are the MOU का बात करता है. Land नहीं दिया बोल के. MOU में क्या लिखा है? अगर तुम ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, तो तुमको मेरा जो बिजनेस लॉस होगा, उसके लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा. Is that the body? So what is the ultimate judgment which it comes? But then there was a suggestion by somebody, इसको सीधा capital reserve में ले. Compensation, because there are decisions which are telling, you see, in revenue expenses में आपका demolition is come CIT versus Madras Auto Supreme Court. Expenditure incurred for preservation or protection of your business asset, that is also revenue expenses, again Supreme Court, Dalmia Jain and Company. Then expenditure in questioning a legislative measure or executive act which hinders the right to carry on the business. This is again Sri Meenakshi Mills Limited, again Supreme Court. उधर भी बोले हैं कि revenue expenses है. That is why many people have stated the initial expenses are actually revenue expenses. But 100 crores is coming as if it is not liable to tax because it should be capital receipt. That is the CIT versus Asoka Marketing Limited and 1987 164 ITR Calcutta decision. So this is because they have stated if damages for breach of contract is there, then it should be considered as a capital receipt. This is the decision which is the Calcutta High Court has stated. If government wanted such type of receipts to be taxed, then when they amended 45(1)(a) for insurance claims, people used to take the actionable claims and insurance claims as a capital receipt and not making it taxable. The government said no.
if insurance comes because of flood, because of this A, B, C, D, 4 items लिखा है, then that will be your revenue receipt. So here they have not amended for any purpose due to any breach of agreement if money would have been received. Possibly this sort of बड़ा पैसा आ जाएगा तो then retrospective तो नहीं होगा, by Jetli he has already stated, तो prospective कर सकता है इसको taxable. But अभी के लिए हम लोग का यह है कि it's a capital receipt. Then the question was asked, सर कैपिटल रिसीट होने से डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व नहीं लेगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर क्रेडिट मारेगा देन मैट लग जाएगा. मैट ही तो मैट नहीं बोलता, मैट बोलता है. सो इसीलिए मैं बोला हर जगह में एक हॉस्पिटल खोलना है. ये सेक्शन अगर रहेगा ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हमारा जो क्लाइंट दोनों के लिए खाली रांची जाने से कैसा होगा, उधर रस हो जाएगा. हमारा हॉस्पिटल क्लाइंट है, बोला सेक्शन मैट के लिए एक रख दो. It has so many retrospective amendments which have been brought. उसको पढ़ने से ऐसा लगता है हम लोग ही मैड हो जाते हैं. और जितना retrospective amendment किया वो ज्यादा retrospective amendment करने से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हो. So this is liable to sir. जो बोलता है मेरे पास एक आर्टिकल मैं लिखता रहता हूँ, हर साल में हम उसका अपडेट करता हूँ. और मैं शुरू किया कब से, जब से ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का डिसीज फाइनेंस मिनिस्टर को लग गया. तो ये जो अपना रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट यशवंत सिन्हा से लेकर एनडीए के बाद ऊपर 1 फिर ऊपर 2 एंड उसके बाद अभी एनडीए 2 का करना है. इंडिया 2 में मैं देखा इनका 2 है. अदरवाइज एक्ट फुल्ली इज रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल. ओके, बहुत सारे हम पढ़ा गए. बंसी भाई ने बोला 118 रेट्रोस्पेक्टिव है. क्या बात करता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं किया. सो दैट इज द थिंग. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ नोट और वो नोट को मैं जरा अपडेट कर दूंगा आफ्टर 28 एंड वो मैं भेज दूंगा पराग भाई के पास, so that whenever he feels like he will send it to you, that how in the last about 17 years this article just only retrospective को उसमें हम कवर किया है, that I will send it. तो retrospective and maximum annexure डालना पड़ा 2012 के लिए, इसलिए नहीं बोला 25 जो retrospective amendment. उसके बाद मैं देखा अरे प्रणव तो प्रेसिडेंट बन गया. कंपटीशन में हो सकता था अगर मोदी साहब नहीं आते ना, फिर कंपटीशन में चिदम्बरम वाज अबाउट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर होने के लिए उसका तो सपना था. सो दैट इज द थिंग. ओके, बट जेटली साहब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करेगा. उसका नाम अरुण है. अरुण जेटली, मेरा नाम तो अरुण ही है, बट मैं फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं बन सकूंगा. बट अरुण बोलने से सूर्य रोशनी देता है, तो इसीलिए अंधकार नहीं देंगे हमारा अरुण जेटली. So this is as far as 100 crores we have thought that it will be capital receipt, but मैट का प्रॉब्लम आ सकता है जब हम क्रेडिट मारेंगे. Then आया केस नंबर 4 which is अपना डेवलपमेंट. ये जो एग्रीमेंट, इसमें कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आना मांगता है. बहुत लोगों को हार्ट अटैक भी हो गया इसमें. क्यों हो गया? वो बुढ़ा लोग रहते हैं, उसके पास बिल्डर आ जाता है, ये अपना बोले सुनने होता है. आते बोलते हैं सर ये आपका क्या करेंगे, आधा एकड़ जमीन उस जमाने में 5000 में उसको मिला है, देन से आपको हम 8 फ्लैट दे देगा. अच्छा ठीक है, देन दे हैव गिवन. उसके बाद टैक्सेबिलिटी पता नहीं था, पावर ऑफ अटर्नी से साइन कर दिए सर और मेरे को पोजीशन दे दीजिए, मैं इधर अच्छा फ्लैट बनाएगा, आपको जो भी फ्लैट चाहिए वो वास्तु के हिसाब से ले लीजिए. उठा ले लिया. उसके बाद जब नोटिस आया कि हमको टैक्स देने का है, he just came with file. He told अरे सबर साहब ये क्या बात है. So then I had to come in the TV to tell the senior citizens, please before you make the power of attorney and development agreement, consult the right advocate and tax consultant. उसको पूछ के वार्निंग रखो, अदरवाइज आप you will be liable to income tax from that date. He is telling, why should I pay tax? I have not received anything. मेरा जगह खाली उसको बोला तू डेवलप
डेवलप करो, पैसा नहीं है, मैं अगर टैक्स देने का है नहीं तो राम नाम सत्य मेरा हो जाएगा। राइटली ही हैज स्टेटेड दैट द लॉ हैज टू चेंज ऑन दिस, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं होगा, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन केम इज, ये नंबर ऑफ केसेस में इट हैज कम दैट पोजेशन देने से, पोजेशन अगर दे दिया तो हो गया आपका टैक्सेबिलिटी आ गया। ओके, रिसेंटली बट एक डिसीजन आया है, अलाहाबाद बहुत फेमस है ना, उधर अपना ये जो हाथी भी है, साइकिल भी है, वो सब तो फेमस है। सो वहाँ एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, CIT वर्सेस श्रीमती नाजू दारा देबू। ओके, consideration on receipt of consideration it will be liable to tax, but not on the basis of the development agreement। एक ही जजमेंट ऐसा है, बाकी सब जजमेंट जनरली अगेंस्ट है। अपना केस में what the consensus had been that अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर दिया, पावर ऑफ अटर्नी करके उसको पोजीशन दे दिया, then आप फंस गए। It is not possible. Then we came to our own case. What has happened? This is a village पंचायत में वो जगह था। आजकल बहुत होता है, स्मार्ट सिटी होने का है, बहुत सारा चीज है, तो सिटी इज गेटिंग एक्सपैंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। सो दिस पर्सन हैज गिवन इट टू द बिल्डर स्टेटिंग दैट भाई यू विल डू द कंस्ट्रक्शन, मेरे को 25% का देगा, तुम 75%। देन द बिल्डर हैज स्टेटेड, डेवलपर, दैट यू शुड गिव मी इन सच ए वे that it should not have any problem related to construction. He has stated. Now, and it is there, all plans and approvals you should obtain. So this man, that is the owner of the land, he got it from the panchayat, because it was estuary panchayat, and panchayat से लाकर उसको बोला तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। Then उधर जो घूमते थे, इधर भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी का लोग, वो बोले पंचायत कब था ना, it has come under us, the whole plan approval has to be by us। उन्होंने क्या किया, उसको बोला कंस्ट्रक्ट नहीं करने का, करोगे तो हम तोड़ देंगे। Then they went to the high court. High court put a stay, telling that sorry, this land is now under dispute, litigation है, तो तुम कंस्ट्रक्ट नहीं करने का, we will examine the issue। So examine करते करते 2012 में they cleared it and said until that such and such time when it was there, the panchayat will be there। When it has been added, after that it has been added to the Bhubaneswar Development Authority, उसके बाद Bhubaneswar Development Authority का start जाएगा, hence the stay is over। उसके बाद that fellow could start the construction। Now the ITO is telling, मेरे को पता नहीं है, 2 साल पहले 9/6/11 को जब आपने दिया, उस दिन आपका लाइबिलिटी आ गया। SSC is telling that मैं तो दिया ही नहीं उसको मैं ऐसा पोजीशन देने का था that you would have been capable of starting the development, क्योंकि it was becoming illegal handover of a land without the necessary permission from the development authority, so he could not start it। Hence I have not given him legal possession as he has stated in that paragraph। उसके हिसाब से अब लड़ाई चल रहा है कि स्टेटिंग दैट लीगली जब हाई कोर्ट ने हमको अलाउ किया, स्टे को लिफ्ट किया, उसी टाइम में हम प्रॉपर लीगल पोजीशन दिया। दैट इज व्हाट हैज बीन स्टेटेड। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। जैसा डिस्टिंग्विश करते हैं केस को व्हाइल द जजेस हियर, नाउ दिस विल बी फॉलिंग मोस्ट प्रोबेबली अंडर दैट, बट मेनी ऑफ द ग्रुप्स दे हैव स्टेटेड नहीं था, वो 6-11 को ही आएगा, दैट इज 12-13 में ही टैक्सेबल हो सकता है। हम फाइट करता है, 13 को उसको मिला है, 14-15 में ही इट विल बी टैक्सेबल। इट्स रिमेनिंग एट दैट स्टेज। माय थिंकिंग इज नॉट ओनली दैट, आई हैव डिस्कस विद रिटायर्ड केरला हाई कोर्ट का जज ओडिया, तो उनके साथ डिस्कस किया था। बॉम्बे में भी आपका जो वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स का देखते हैं मिडिल लाइन्स में है, उनके पास भी गया था, वहाँ भी बात किया। हर जगह में वो द जज एज वेल एज द स्टेट नो, it should be on legality basis this has not been, so you can differentiate from the other cases and say that it will be liable only when the legally I have handed over to him. He is
said मेरे को जब घर मिलेगा तभी मैं टैक्स दूंगा. So that I said that it will not be possible because it's a judgment नहीं आया है. और अभी क्या हुआ, ये इलाहाबाद वाला बोला है कि वो actually she is 79 year old, you know, this श्रीमती नाजू दारा देबू. जजेस को शायद कुछ कंपैशन में आ गया कि 79 year old lady is actually suffering. तो इसीलिए वो बोले अरे कंसिडरेशन नहीं मिला तो वो कैसा टैक्स देगा बाबा, जब कंसिडरेशन मिलेगा तब टैक्स देगा बोल के जजमेंट आया. सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल. हम इसको लेकर जितना बुढ़ा लोग का इधर फाइल है उधर हम बोलेगा कंसिडरेशन. So this is as far as the content. This is our case study number 4. फिर हम 5 में जाते हैं, electricity duty and the interest due thereon. हम लोग फाइल करके 2005 itself we have worked in the Cuttack Tribunal. हमने रेफरेंस दिया था, यहाँ जजमेंट भी कॉपी लाया हूँ, ये दे चुका. आज शर्मा जी बोले थे सावत मेरे को देने के लिए. I have brought the full judgment for you because the reported one is in gist में है, वो 1.5 पेज में है, ये 54 पेज में है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया. Now here even it is 2005 का judgment है and there itself they have stated interest is compensatory in nature. And in that judgment, they have referred many of the Supreme Court judgments. If you see the Calcutta High Court का जो various judgments which are actually referred, you will find in those cases Orient Beverages वगैरह उसमें सब EL Properties Private Limited, all these cases में इसको 37(1) में allow हुआ है. They have stated duty is duty, cess, etc. But as far as the this interest is concerned, it is compensatory in nature. But in the discussions it has come that it is if it forms part of the duty according to the act itself of Electricity Duty Act of this. हरियाणा का कुछ जजमेंट बोले हैं कि वहाँ ऐसा हुआ कि उनका जो टैक्स देने का था and that tax में they said this will form part of the tax due and all the sections related to acquisition of property or seizure of the property, everything will be applicable for the duty as well as interest. So वहाँ का कोर्ट बोला है कि then it forms part of the and I think आपका एक डिसीजन आया है अभी in the January 2015 it has come section 43B, provisions of interest on disputed excise duty not allowed, and SSC following mercantile system of accounting, assessment year 1991, CIT versus Symboli Industries Private Limited 2014, 111 DTR Allahabad High Court का. और ये the Honorable High Court held that the interest on excise duty liability is an extended liability of the excise duty for the belated payment is allowable only on the basis of actual payment. Reported in the chambers, our chambers journal of January 2015. So this is a sole judgment which I found that it is talking. Now Haryana add kiye hain, but many other judgments which are here, they are all talking that the interest is compensatory in nature and so it will not come. Similarly, fine. If penalty is levied by the government, then automatically हमारा 44A में आता ही कि penalty है तो disallowed. But fine दिया क्यों? Breach of agreement. Breach of agreement does not mean that it is 43B का the breach है. तो इसीलिए ये जो we have talked about this. The fine levied for contravention of terms of agreement would be considered as an expenditure of commercial nature and allowable as expenditure, mind you. Also, everybody has talked on that line. And so, interest on electricity duty, we have won, and I have stated that there are so many case laws in which the Supreme Court judgments have been talked. So, on that basis, interest is an allowable
allowable expenditure under section 37(1) and doesn't come under 43(b). Now इसमें बहुत सारे बेनिफिट ले गए हैं लोग, and because of these judgments type and because different types of judgments आता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन रहता है CBDT में, ये जजमेंट्स को पढ़ के लॉ को बदलाने का। जजमेंट को पढ़ने के लिए कुछ बैठते हैं, दे स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम ट्राइब्यूनल, एंड ट्राइब्यूनल से पढ़कर सारा ऐसा जजमेंट आ गया, तो इट डजंट गो टू जेटली। जेटली ओनली जो पहला पन्ना पेजेस आता है ना, जिधर बड़ा बड़ा अक्षर में वो पढ़ता रहता है 1 घंटा का, उतना ही जेटली बनाता है। बाकी छोटा छोटा अक्षर में जो आता है, जिसको हम लोग चश्मा या कुछ ये जो बड़ा कांच ये सब देखकर हम देखते हैं पढ़ने के अंडरस्टैंड करने के लिए, वो सब ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ओके, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर सेक्शन को देखकर दे माइट से दैट इंटरेस्ट पेबल टू द अथॉरिटीज विल नॉट बी कंपनसेशन एंड इट विल बी डीम्ड टू बी कवर्ड अंडर पर्टिकुलर, ऐसा बोल के आ सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, बट प्रोस्पेक्टिव आ सकता है, क्योंकि इट इज हंड्रेड्स ऑफ करोड़। मेरा एक क्लाइंट है जिसने प्रोवाइड किया 700 करोड़ रुपया, क्योंकि केस चलता है अप टू सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। सो नेचुरली द इंटरेस्ट दे गो ऑन प्रोवाइडिंग एंड नॉट पेइंग। सो मर्केंटाइल सिस्टम में केदारनाथ जो डील्स बोल के अलाउ करने के लिए बोलते हैं, तो नीचे नहीं देता है, वो नीचे नहीं देता है क्योंकि चीफ कमिश्नर बोलता है मेरा कलेक्शन चाहिए, एंड देन हमको बुलाता है, बोलता है साबत जरा ये पैसे दे देना रे, तुम जीतने से रिफंड दे देगा, मेरा टारगेट कम होता है। सो मैं बोला सर चाय पिलाकर 100 करोड़ आप लेना चाहता मेरा टारगेट होता है, लेकिन तेरे को मैं खिलाऊं, आई टेक यू 5-star होटल गिव यू फूड, अभी चाय में खुशी रहो पर 100 करोड़ दे दे। दिस इज द वे नाउअडेज सर ही सेड, मैं जैसा तुमको गन दिखाता हूँ ना, ऐसा ही मैं जब जाता हूँ सीबीडीटी चेयरपर्सन को जेटली बुलाकर देता है, तो इसीलिए ये हो गया अपना केस स्टडी नंबर 5। देन वी कम टू केस स्टडी नंबर 6। ये 269 एसएस के ऊपर है। On identical facts in this case, CIT versus Mark Bodia Construction, it was held that considering the circumstances of the case, confirmation being available, entries found in the books of lenders, and identity of persons have been established, the provisions of section 269 SS would not be extracted on the ground that the lenders were agriculturists and having only agricultural income which are exempted from tax. ये जो है ये केस एकदम पक्का है, there is no problem. But ये जो अभी और नोएडा टोल केस है, another केस है, उधर बोला है कि एंट्री में पैसा, ये पहला तो कैश का है। अभी जनधन स्कीम मोदी साहब का होने के बाद once you have put 99.99% of the population is covered through banking system, तो आप बोलेगा रोकड़ा दिया बोलने से ना आईटीओ अलाउ करेगा ना आप जीत सकता है। सर जनधन आ गया ना, तो उसका बैंक में आप ही बोलते कैश क्यों देता है, उधर डाल दो और उधर से आरटीजीएस करके मेरे अकाउंट में भेज देना, दैट विल बी टोल्ड। तो रोकड़ा में एग्रीकल्चर से लिया बोलने से इट मे नॉट नाउ कम एंड द आईटीओ विल से सॉरी सर आप ऊपर ले जाइए, लाइक दैट फाइट up. But as of now, it is that these cases, that is Noida Toll Bridge Company, 139 taxmen, and also another CIT versus V Worldwide Township Projects Limited. It was stated that if any entry में भी पैसा देते हैं, I could not pay. I told my sister concerned that अरे उसको pay कर देना है. So he has paid. And through account पे check only he has paid, और उसको ड्यू था, मेरा ड्यू था, बट उसको भी उससे लेना था, एडजस्टमेंट हुआ है। So these are the cases which are telling ऐसा होने से एडजस्टमेंट, then it will not be deemed that account पे check में तुम क्यों नहीं दिया, एडजस्टमेंट क्यों हुआ। These are the cases which are talking about it. As of now ये 269 cases में नहीं कवर होता है, एंड उसके हिसाब से as far as the taxability, the levying of
penalty also does not come. But there is a point which has been stated. अगर ये अर्बन में होता तो, अर्बन में होने से ऐसा रोकड़ा ला कर देना बोलने से वो सुनने वाला नहीं है। हाँ, पहला तो ये सब केस बताने से वो बोलेगा सर ये सब अलग है सर। एंड द एग्रीकल्चरिस्ट वाला भी केस ये आपका अर्बन में एप्लीकेबल नहीं होगा, रोकड़ा में किया है तो आपको इट विल बी डीम्ड टू इनकम एंड हम उसके ऊपर टैक्स भी डालेगा, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी डालेगा और उसको अगर यू नो वो पेनल्टी वगैरह को कॉम्प्रोमाइज करना है तो कॉम्प्रोमाइज कैसा होता है आप लोग को मालूम है। सो दिस इज एज फार एज द 271 डील। ये जितना है ये 14A एंड 80 उतना है। 14A जो सुप्रीम कोर्ट का केस वेयर हाउसिंग वाला, उसको जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके अंदर सीना साथ लाया, इट हैज क्रिएटेड ऑलमोस्ट हैवक एंड नथिंग गेट्स फाइनलाइज्ड। सुप्रीम कोर्ट में तो गया है, ये सब ट्राइब्यूनल एंड हाई कोर्ट के अंदर घूमता रहता है। So it is creating enough issues and problems and headaches, but also it gives income to chartered accountants and directors. दोनों वो तो हम काम करते हैं ना, थोड़ी मुफ्त लेते हैं। बनाइए लोग कितना बनाने का, उसको पढ़ेंगे, उसको हम फाइट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, now we have to go to the points which have been raised in this. Yes. From the financial statements of PQR Limited for year ended 31st March, so उसका investment in mutual funds में है, we will go to queries, issues. Whether the assessing officer can resort to Rule 8D as the SSC has already added back 12 lakh 14 lakh based on the records as amount disallowable under 14A while computing total income. आप अगर खुद ऐड किए हैं, then if he has to reject, he has to give you opportunity. Why is he disallowing what you have? And for your information, we have won the cases. हम क्या किया कि इधर फिगर है, इधर हम बोला ये पर्टिकुलर आदमी हमारा, he is asked to look into the investment in mutual fund, उसका पगार और इधर का थोड़ा सा ओवरहेड एलोकेशन वो सब करके एकदम फिगर निकाला एंड डाटा हम डिसअलाउ खुद कर दिए। So that fellow said, I will not go for this. I will go for 0.5 and I will go for this interest and all these. So we went up to tribunal and the tribunal said, look, it's a reasonably, genuinely he has computed the things and he has given. So there is no point of telling that पूरा administrative expenses का तुम percentage ले जाएगा. There can be a person. Then other case, another big company है, उसका big figure है. उधर हम एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का पूरा खर्चा हम निकाल के उसमें से पोर्शन को लिया है। अभी CIT अपील के पास है, नीचे तो वो अलाउ नहीं किया है, it is going. So the first one is related to the expenses which if you have claimed, then whether it is allowed. It is clear from the plain reading of section 14A2 and this 14A3, AO can disregard the computation by SSC if he is not satisfied with the SSC's computation. Is not correct based on the accounts of the SSC. It is essential that AO records in writing as to why he considers the computation by the SSC to be incorrect. Above principle has been upheld by judicial decisions, also one of which is Maxop Investments Limited and others versus CIT in 2011 through 347 ITR 272. It was also laid down in the above mentioned judgment that SSC has to be offered the opportunity to deny padega. Then came the whether disallowance can exceed exempt income figure. Almost all three groups it was coming, except few who were telling me where is it written that it is there. But the judgments are there stating that अगर आपका 1 लाख रुपया का इनकम आता है exempted income, आप अगर 1 करोड़ रुपया उसको डिसअलाउ करेगा, that will be unjustified. What for the courts are there to give justice? There cannot be 1 लाख का exemption के ऊपर 1 करोड़ का disallowance. So it has come that 1 lakh
means you cannot, the disallowance cannot exceed a lakh of rupees. That is what was the consensus, but decisions differ. Some decisions may, I know it is a, the section and it is a deal, तो उसके हिसाब से the ITO will go as per exact wordings of that. But courts have held that it cannot, And here, see, Allahabad High Court, Gujarat High Court, Punjab and Haryana High Court. यहाँ आया है no section 14A and rule 8D disallowable if there is no tax-free income. अगर tax-free income नहीं है तो कोई भी expenses disallow नहीं होगा. तो tax-free income 1 लाख है तो 1 करोड़ कैसा disallow हो जाएगा? हम इसको देखकर ये सोचता है. Then it is CIT versus Cortec Energy, Gujarat High Court. No disallowance under section 14A and rule 8D can be made if the assessee does not have tax-free income and no claim for exemption is made. वो भी है. No claim for exemption is made in the return है, तो then you cannot disallow. This is the Gujarat High Court. Then we have CIT versus Lakshmi Marketing, Punjab and Haryana. 14A disallowance cannot be made if the assessee has no tax-free income. तो 3 different high courts का judgments है. तो इसको हम सोचना चाहिए कि दिस में भी द कंसेंसस है, जब भी कोई इनकम ही नहीं है, फिर वो इनकम टैक्स, हम इनकम का रिटर्न में हम कुछ निकालते नहीं है, टेलिंग दिस इनकम आई हैव अर्न्ड बट इट इज एग्जेम्प्ट, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसअलाउंस. दिस इज व्हाट द जजेस हैव स्टेटेड. देन this one case which I have just I was reading is there is nothing in the provisions to the effect that expenditure disallowed should not exceed income. ये आपका संचयिता मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड ACIT 2008 25 SOT 57 मुंबई. बट व्हेन आई वेंट थ्रू इट, उसके अंदर बहुत सारे वो शेयर्स का धंधा है एंड उसमें तो आई वाज फाइंडिंग दिस इज एब्सोल्युटली a different type of things which are not found in the other cases. So that is why एक ही केस ऐसा था. So okay, exempted income हम तो आपको बोला 3 cases है. Then Lakhani Marketing we have talked. So this is ABC. Then we come to value of the investment in foreign currency. Okay, but before that I think we have can be made if no exempt income, we have discussed. Then whether disallowance can be made by considering the balance of investment for foreign subsidiary. That foreign subsidiary से हमको जो dividend आता है वो dividend taxable है. तो foreign subsidiary का investment cannot be considered when the income itself is offered for taxation and it is not an exempted. So investment के अंदर उसको लेना नहीं चाहिए. Then the question came related to Indian subsidiary. तो इंडियन सब्सिडियरी में आप इन्वेस्ट करते हो, डिविडेंड अर्निंग के लिए करते हो क्या? आप एक सब्सिडियरी क्रिएट करते हो फॉर द पर्पज ऑफ योर बिजनेस ग्रोथ, फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग ए कंट्रोल्ड थिंग इन 2 different कंपनीज, नॉट द बिजनेस सम डिविडेंड व्हिच विल कम. इतना आप अगर इन्वेस्ट किया है तो उसके लिए इट हैज कम दैट द केस लॉ इज see the value of investment in foreign subsidiary not not to be considered. ये तो पूरा Suzlon Energy Limited का केस है 354 ITR and Strides Acrolab Limited Mumbai Tribunal, that is foreign subsidiary. Then in respect of domestic subsidiary there are case laws, Bharat Hotels Limited and East India Hotels Associated Hotels Limited. ये दोनों में बोले हैं domestic subsidiary, it has been held that where investment has been made to promote business or for other commercial reasons and not for purely earning dividend income, such investments in domestic company shall not be taken into account for the purpose of computation of disallowance. This is as far as case laws are concerned, which having according to me also, it's a trade investment. Trade investment and investment for earning dividend income are 2 different things. And इसका income तो बहुत कम होगा. So that is the thing. So these judgments I feel I go by these judgments. Then it is the
चैप्टर 6A में अगर डिडक्शन है तो वेदर ही कैन अप्लाई, टेलिंग दैट तुमने एग्जेम्प्टेड इनकम कर दिया उसको, ऊपर में इनकम लिया, नीचे में डिडक्शन ले लिया, दैट्स नॉट एग्जेम्प्टेड इनकम। सेक्शन 10, देन सेक्शन 10, 35, 38 ये सब जो डिविडेंड आता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, it is then one will be telling even though it is not, it is taxable, it is income में आता है, because of the law it has been made non taxable, झगड़ा में जा सकता है। So here I don't go by the decision of Punjab State Cooperative Milk Producer Federation Limited, which has held that section 14A is applicable even in respect of incomes which are excluded from total income by virtue of chapter 6A. I am not, with due respect to that tribunal. I go by Infosys Technologies Limited. It is 2007 109 TTJ, Bangalore Tribunal. It was held that section 14A would not be applicable to a deduction under chapter 6A. Really speaking, हम लोग इनकम में ये कंप्यूटेशन में हम दिखाते हैं कि इट इज नॉट लायबल, फर्स्ट टोटल इनकम में दिखाते हैं, उसके बाद डिडक्शन में लेते हैं, एंड द लॉ हैज नेवर बीन मेंट फॉर द पर्पज ऑफ टेलिंग नीचे जो डिडक्शन लेते हो उसको भी मैं कंसीडर कर दूंगा एज एग्जेम्प्टेड इनकम। सो आई फील इन्फोसिस टेक्नोलॉजी केस इज दीज ऑल एक्चुअली रिक्वायर क्लैरिफिकेशन। अगर आप केस लॉ पढ़ के आप पनिश कर सकते हो एसएससीज को, केस लॉ पढ़ के इश्यूज को सॉर्ट आउट भी करो, देन ओनली बिजनेस के लिए अच्छा दिन आएगा और मोदी के लिए भी अच्छा दिन आएगा। नहीं तो जनवरी 2015 से कुछ उनका कुंडली में कोई शनि या राहु किसका एक इफेक्ट आ गया है, उसको रिवर्स करने के लिए 28 इज द बेस्ट डेट। देन we have interest cost is capitalized. Interest cost is capitalized. तो मैं तो revenue expenses claim ही नहीं किया. It is actually capitalized going for later whenever finalized. So the decision of Arihant Advertising Private Limited, this Delhi 2007, it was held that if interest cost is capitalized, not claimed as a deduction, this same cannot be considered for disallowance under section 14A. तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से क्या डिसअलाउ करेगा वो? मैं अगर रेवेन्यू मेरा इनकम को घटाता है, then you consider about it. But there are ITOs who are telling आप तो कैपिटलाइजेशन में लिया है, ये डिसअलाउंस नहीं हुआ है, पीछे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाला है, and so you will take the benefit later. If I don't add, what will happen? I will add, telling that it should be disallowed from his capitalization. मैं बोला तुम इतना करो तो ठीक है, that fellow has done that capital work in progress से निकाल के वो इनकम कुछ भी नहीं था उसमें ऐड कर दिया और उसके ऊपर डिमांड कर दिया। हम बोला ये सर क्या करते हो आप? नहीं यही करना है, आपको ऊपर में जाकर जीतना है तो जीतो, अदरवाइज आई फाउंड आउट लेटर दैट उसको महात्मा गांधी चाहिए। और ऐसा भी बोलता है रखने के लिए सुविधा होगा अगर बड़ा महात्मा गांधी ना हो, जगह कम रहता है। देन इंटरेस्ट फ्री फंड्स, उसके लिए तो बहुत डिस्टेंट है आपका सर। योर इंपॉर्टेंट केस इज HDFC CIT वर्सेस HDFC बैंक लिमिटेड 366 ITR मुंबई हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट, निम्बस कम्युनिकेशंस लिमिटेड मुंबई ट्रिब्यूनल। तो जब आपका फंड ही सरप्लस फंड है, अपना फंड है, मैं कैश फ्लो बनाया और दिखाया ये पैसा को मैं इन्वेस्ट करता है, कोई लोन का पैसा मैं उधर डाला नहीं है, फिर आप लोन का इंटरेस्ट को कैसा डिजर्व करते? सो दिस इज व्हाट इज द थिंग। एंड व्हेन आई वाज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, हम यही 14A के ऊपर, दिस वाज माय थिंकिंग एट दैट टाइम। आई टोल्ड देम स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ये सब एडवाइस देने का नहीं है क्योंकि पैसा तो नहीं लो, जितना RBI फीस बोला है उतना ही दे देता है, बट whatever it is, it belongs to the people. इसीलिए हम फ्री एडवाइस देता गया 3 साल। ओके, सो अल्टीमेटली whether they have won or not, I cannot say. But this HDFC बैंक आने के बाद हमारे हिसाब से ट्राइब्यूनल में शायद वो जीते होंगे क्योंकि ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है, एंड दैट टू 2014 का है। एंड computation of disallowance is laid down in Rule 80
in our opinion, AO cannot deviate. ये जो McDonald's वाला है, and opening and closing balance. आप एक्ट में बोलते हो opening plus closing divided by 2 and उसको कंप्यूटेशन में डालो. आपको लॉ ने बोला है कि ऐसा करो मिलके. How can you say मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर? ये सब दिमाग तुम्हारा है. सवाल तुमने बोला होगा एंड में दे दो, फिर 2 अप्रैल को खरीद लो, फिर खेलो 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 और 30th को फिर उसको पैसा लेकर आ जाओ. हम बोला हम करेगा ना. ये अगर लॉ अलाउ करता है तो चेंज करने दो ना चिदम्बरम को. चेंज करेगा तो हम नहीं करेगा. I said you can't do it. You cannot think. हम इसको लाया है because I'm facing problem. So he said no, this is engineering tax planning. This is colorable. कौन सा कलर है तो बात. एशियन पेंट का कार्ड से तुम कौन सा कलर इसको चूज करता है? ये कुछ कलरेबल नहीं है. ये पूरा एक्ट पर एक्ट है. And you can't go beyond that. ना मेरे को ये बोला है, you know, I can show you हमारा सेपरेट इंस्ट्रक्शन आया. कौन सा इंस्ट्रक्शन है? एक्ट में आया है या तुम्हारा चीफ कमिश्नर बोला है या CBDT से आया है? सॉरी, यू कांट डू इट. एंड सो मैकडॉनल्ड्स केस ही कैनॉट गेट इट कंप्लीट. एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिवाइडेड 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2 = 0. दैट्स व्हाट आई टोल्ड. एंड दिस इज द लॉ. चेंज करना है तो आप बोलो ना. वो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट अगर करेगा, हम नहीं खेलेगा उसके साथ. तो दिस इज एक्चुअली वी कम अंडर केन्स का जो हम बोला जो सेंटेंस. ओके, देन I think all the issues which have been raised, mutual funds, whether the AO can deviate from machinery provision, no, he cannot. That I have told. Maybe there are McDonald's case. So ये जो केस स्टडीज मैं आपको कहता हूँ, मेरा क्या बजट में भाषण देने का मेरा एक्सपर्टाइज है. लास्ट 32 साल हो गया बॉम्बे से आने के बाद. एवरी ईयर बजट के ऊपर मैं टॉक देता हूँ और आजकल जरा टीवी में भी आता हूँ. अभी तुम्हारा शूटिंग है हमारा. ऐसो बॉम्बे में तो सीए जब हम बना तो मैं गया था तो मेरा दादाजी थे. तो बोले कहाँ जाता है बेटा? दादाजी मैं बॉम्बे जाता हूँ. क्या करेगा ना? सीए बनूंगा. सीए ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, खाता पत्र जांच करके पैसा भी निकालता है. तो ओल्ड मैन हमको बोला सीए बोलने से तेरे को सिनेमा एक्टर बनने का. ओके, तुम हीरोइन के पीछे बेड के पास भागेगा. तुमको गाना भी नहीं गाने का, मोहम्मद रफी गाना गाएगा, लाखों कमाएगा. इस सीए में क्या मिलेगा रे तेरे को? I should have gone for it because Amitabh Bachchan was staying nearer to my house. I was having a flat in Juhu. तो मैं अभी सोचता हूँ, बट 64 इयर्स हो गया, फिर भी टीवी में बुलाते हैं तो हमको लगता है अरे हीरो जैसा थोड़ा सा जाना चाहिए. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गिव द टॉक. नाउअडेज आई एम ऑन द टीवी एज इन्वेस्टमेंट गुरु. सो आई एक्सप्लेन टू पीपल this is what I have taken as my corporate social responsibility. How to make people knowledgeable. Knowledge he has given. It can be power. It can get you money. But it's not always that knowledge is to be sold for money. अब क्या सोचा? Knowledge को वितरण करने लोगों के पास वो नहीं आ सकते इनके साबत के पास. So उसके पास मैं कैसा पहुंचूंगा? So that is the way I told them chit fund क्या प्रॉब्लम करता है. ब्लैक मनी इज लाइक कोबरा इन योर हाउस. आप दूध देने का कोबरा को किस दिन आपको चोट लगाएगा, आपका फैमिली ही उसके अंदर आ जाएगा. सो डोंट क्रिएट. टैक्स प्लानिंग करो. एंड आई हैव रिटन इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स प्लानिंग बोल के एक नोट बनाया है. उसमें पूरा हाउ वुमेन हैव टू टेक केयर, हाउ द सीनियर सिटीजन्स हैव टू टेक केयर. आजकल सीनियर सिटीजन्स को बच्चा लोग ठग देता है. पिताजी मैं आपको पूरा देखूंगा उसका मिसेस आने के बाद, और दोनों मिलकर बुढ़ा को पूरा बनाने का और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं. सो आई कम इन द टीवी एंड टेल प्लीज डोंट गिव योर प्रॉपर्टी टू चिल्ड्रन. कभी कभी लगता है चिल्ड्रन लोग मुझे मारेगा, बट हम बोलते हैं जाने दो, वो तो है ना देखने के लिए हमको. तो मैं बोलता है पैसा मत दे दो, अपने पास रखने का. जब तक पैसा आपके पास है आप ताकतवर है. जब उसको दे देगा आप दुर्बल हो जाएगा. और वो पैसा को लेकर जाना बच्चा लोग के पास. आप अगर जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे अगर आप खर्चा करेंगे
बोलेंगे पिताजी रहिए ना कुछ दिन और, अगर आपके ऊपर उसको खर्चा करना पड़ेगा फिर वो बोलेगा कब जाए पिताजी, कब तक टिकट काटूं, सीधे तो एंड व्हाइल कमिंग बैक आई हैव आल्सो गिवन एडवाइस इन दैट कि कुछ पैसा ये जो नाती ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर को जरा देकर आना, सो दैट दे विल टेल दादाजी आने से बहुत अच्छा है, जाते जाते पैसा देकर जाते हैं। So like that reverse mortgage I have explained to people. I have explained to people under 2007 Senior Citizens Act how if a son has taken your property and he is not taking care of you, it can be reversed and the property can come back to you. तो ये सब हम दिया है, बिल करना चाहिए, नॉमिनेशन होना चाहिए, फैमिली सेटलमेंट करने का चाहिए। सोनिया जी ने ऐसा किया, उसने पास कर दिया कि every daughter whether married or unmarried is having a right over the property, ancestral property. अपने उड़ीसा में 20,000 केस चल रहा है, सब बहन लोग भाई लोग के ऊपर केस डाल दिया है, झगड़ा चलता है। मेरा पिताजी 91 ईयर ओल्ड है, मुझे बोला बेटा मैं जिंदा रह के तू दस्तखत ले ले सबका, एक फैमिली सेटलमेंट करो, दस्तखत करवा दो, नहीं तो मैं जाने के बाद तेरे को तेरा बहन लोग हैरान करेगा, तेरा भाई का बच्चा लोग। सो आई गॉट इट डन about 10 days back. पिताजी है 91 year old and he is a principle which he has told me, कभी ऐसा काम मत करो जिसमें तुम बदमाश बोल के लोग मुझे बोलेगा तो मैं बदमाश बन जाऊंगा, क्योंकि ऐसा बच्चा पैदा किया जो कि मेरा बाप बोल के मेरा नाम खराब कर दिया। तो वही मैं फॉलो करता हूँ अभी ये जो 33 साल हो गया। और इट इज लाइक दिस हैज क्रिएटेड, हम अपना वेरियस फैमिली में हम देखा है केस वगैरह फाइल हो गया है। एंड ऐसा भी मैं बंद करने से पहले बोलूँगा कैसा हुआ, मेरा खास दोस्त का चाचा मर गया, तो उसका लड़की शी वॉज कमिंग फ्रॉम कटक टू पेरमपुर, उसका हस्बैंड एडवोकेट है, तो आते आते उसको वाइफ को बोला है ये सोनिया जी ने पास किया है, तू जाकर उधर पैसा मांग, जनरली तेरे को मिलेगा। बाप चला गया, she fell on the body of the father and cried like anything and बोला पिताजी आप चला गया, भाई लोग क्या पैसा देगा मुझे मालूम नहीं है, तो काम के लोग के सामने उनको बोलना है कि कितना पैसा मुझे देगा। The brothers they told this much we will give you in front of all. Then she left the body to be taken to the graveyard, and after that they gave the money and told you are dead for us and we are dead for you. That's all. The money is there in between you and us. Take the money and go away. This is the way. अपना मैडम ने वो लावा ऐसा पास किया। 50 साल पहले 60 साल पहले जो शादी करके चले गए हैं वो लोग अभी केस डालते हैं, बट वो नहीं है क्रिश्चियन लॉ में, वो नहीं है मुस्लिम लॉ में, अदर लॉ में नहीं है, खाली हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर उसको घुसाया है। सो एनी हाउ देखते अपना जेटली साहब क्या देते हैं। आई एम वेरी वेरी डिलाइटेड टू हैव कम अमॉन्ग यू and share some thoughts, some knowledge which Lord Jagannath has given me, and it has been my pleasure to just talk. Somebody said before time, बोले साहब को बुक किया था up to 9:15 और 15 मिनट इधर से किया, तो 15 मिनट रखो, 20 मिनट में जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो, हम बला पूछ नहीं दो। Questions are invited from the floor. And I am a member of your chamber. हमने डिसाइड किया है अगले बार फिर फरवरी में होगा तो मुझे आप वहाँ देखेंगे, मैं आऊँगा जो मेंबर। Yes, sir. So you said that one house, and explained that one house amendment. You said that family is big
family, and there is a 2 or 3 units in one building, Huh. will now not be available. But will it not be still considered as one house? Because a house, what do you mean by a house? If it is a bigger house, because there are 3 or 4 flats together, will it become more than one house? मेरे हिसाब से 3 फ्लोर में मत जाइए। आप 1 फ्लोर का सब घर ले लीजिए, वन ऑफ द फ्लैट्स को बोलिए ये किचन है, कॉमन किचन, और बाकी तीनों में मेरा बच्चा लोग रहता है, ये पूरा फ्लोर इज 1 यूनिट। सोसाइटी में उसके हिसाब से दस्तखत करवाइए, बिकॉज दे वांट 1 हाउस एंड यू नो द आईटीओस। If it is more than 1 floor, sir. शायद 1 फ्लोर में इवन वी कैन आर्ग्यू दैट यू नो वो जो सीढ़ी करके ऊपर जाने का एंड 1 किचन रहता है एंड 1 नंबर आता है, वो करने से शायद 1 हाउस बोल के मिलेगा। बट बाकी आप अगर बोलेगा इंडिपेंडेंट फ्लैट 702, 602, 502, हम ऐसा 3 घर लिया है, मेरा तो जो पैसा था बोलने से वो बोलेगा नहीं, दो एक ही घर में अलाउ करोगे, बाकी 2 घर को हम अलाउ नहीं करेंगे। Even though in the plans, if it has been passed as separate flats and it is connected within, हम क्यों नहीं होगा? आप बोले मैं सोसाइटी को लिखा, बिल्डर को लिखा, सोसाइटी तो हर एक को दे रही है अलग अलग सर्टिफिकेट फ्लैट के हिसाब से। हाँ 4 सर्टिफिकेट आएगा, 4 फ्लैट एक करूंगा, ठीक है? वो पॉसिबल है। तो राज नहीं, सही बात है। मैं सोचता हूँ इसको फर्दर स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो मैं बोला, 1 फ्लैट को पूरा पूरी कर दीजिए, दैट इज रिलेटेड टू आवर ड्राइंग रूम, टीवी उधर ही रहता है, खाना पीना सब उधर ही बनाता है रहता है, एंड बाकी जो 3 है, मेरा लड़का रहता है, वो लड़का रहता है, बॉम्बे में तो किचन मिलेगा। बिल्डर जो है ना हर एक फ्लैट के अंदर किचन तो देते ही हैं, तो उसको फिर बताना किचन को स्टोर रूम कर दीजिए और दूसरा किचन को पूजा रूम कर दीजिए। इस पार्ट ऑफ द प्लान एज अ सेपरेट फ्लैट। हम प्लान में हम चेंज कर देंगे, बिल्डर को बोल के हम चेंज कर देंगे। अच्छा, फ्लैट नंबर अलग रहेगा और मीटर अलग रहेगा, एज फार एज इलेक्ट्रिकल इज कंसर्न्ड, सो मेनी थिंग्स विल बी अलग, एंड ही हैज ब्रॉट द अमेंडमेंट जेटली, तो they are not going to listen to our this argument। तो चल रहा है, बहुत सारे आपका बॉम्बे में ज्यादा ये सब डिसीजन आता है आप लोग की कृपा से, और वो पूरा बेनिफिट मिलता रहता है। हम इधर बाजार में करता है, अरे घर का 1 फ्लैट खरीदो, ऊपर ऐसा सीढ़ी कर दो, पहले से 1 फ्लैट प्लस 1 फ्लैट डुप्लेक्स हो गया और सिंगल बेनिफिट मिल जाता है। ऐसा करके हम बताया, सेम बिल्डिंग में आप पूरा 4 फ्लैट ले लो अंडर HUF, सपोज यू हैव सोल्ड and then you take it and say HUF is a big family, so सब लोग हमारा इधर रहते हैं, like that करके, and then got it. But now after this amendment, I think he might say, no sorry, I will treat it as 1 is 1, 1 cannot be so many. Sir? हाँ सर्कुलर है, और सर्कुलर कैनॉट चेंज द लॉ। सीबीडीटी ऐसा ही सर्कुलर निकाल देगा तो फिर पार्लियामेंट जरूरी नहीं, तो इसीलिए वो सर्कुलर को दे हैव इग्नोर्ड, और एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न्ड, आई थिंक देयर आर मेनी केस लॉज इज सर्कुलर कैनॉट एक्चुअली चेंज व्हाट द लॉ इज मीन। they will tell, अभी तो 11 to 2014 का है ना, अभी का ही है, तो there will not be, actually the courts will not be, कोर्ट तक तो जाना पड़ेगा, जरूर जाना, वो सर्कुलर इज बाइंडिंग एज फार एज द ITO इज कंसर्न्ड, उसका करेक्शन के लिए दैट सर्कुलर इज दैट, बट उसके बाद हम ऊपर में जाकर फाइट कर देगा, सर्कुलर ऐसे ही निकल के लॉ को चेंज कर देगा क्या? तो किस लिए पार्लियामेंट बैठा है सर? We'll find. Yes, sir. Under section 54, I purchase a flat for 40 lakh rupees and make addition of 10 lakh rupees. हाँ जी। Whether I will be allowed possession of 50 lakh rupees or 40 lakh? As a proportion. 40 लाख का आप खरीदा, आपका कैपिटल गेन कितना था? पूरा था 50 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, तो आप फ्लैट ही जो वॉल्स खाकर वो होकर देता है ना, so is it habitable as he has given? तो हम अगर फ्लैट के अंदर ये सब करते हैं काम, I think we should claim telling that the flat
plus various expenses which I have incurred to make it habitable. पर फाइटिंग में जाएगा, वो बोलेगा हाउस बोलने से आप हाउस खरीदता और उसके बाद आप उसको 50 लाख डालेगा, वो हाथी दांत का लेकर आएगा, या आप सब हीरा मोती सब डालेगा जिधर बैठेगा आप, तो हम आपको लो करेगा क्या? ऐसा झगड़ा में जा सकता। ओके, तो रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द हाउस हैबिटेबल शुड नॉट बी डिजर्व अंडर कैपिटल गेन्स हमारे। It will not be binding on High Court decision. We will go by other High Court decisions until Supreme Court does not decide. And when different judgments are there, what is favorable to me I will take. I will take what is unfavorable to me. And the fights go on. हमारे हिसाब से जनरल एंट्री मारने से ऐसा 269 एसएस नहीं हो जाता है, क्योंकि ये लोग को जनरल एंट्री मालूम नहीं है। जनरल एंट्री क्या है? हम लोग बीकॉम पढ़ के रगड़ के हम लोग सीखे हैं जनरल एंट्री क्या, बाटली वही पढ़ा, या स्पाइसर एंड पेगलर का वही पढ़ा, या अपना क्या शुक्ला एंड ग्रेवल में हम देखा है कि आईटीओ लोग कैसे आता है। किधर हम एक आईटीओ में देखा वो संस्कृत करता था, संस्कृत से मैं बोला तू संस्कृत पढ़ता था आईटीओ बन गया, कैसे बन गया रे? बोला सर सिविल परीक्षा होता है, जनरल स्टडीज दिस दैट करके अब पास हो गया। उसके बाद क्या ना वो नागपुर गया, उधर जाकर कुछ सीखा है, उतना है। आप मेरे पास आते रहिए सर, इतना जो ज्ञानी है तो आप मुझे ज्ञान दे देगा। एंड अभी भी वो दिल्ली ट्रांसफर हो गया तो उधर से फोन मारता है, अगर उसको समझता नहीं साहब जरा बताना है, अगर ऐसा है तो क्या होगा। ऐसा कौन सा क्लाइंट है वो सफर कर सकता है, हम तो झूठ नहीं बोलेगा। तो दैट इज वाई हम क्यों झूठ नहीं बोल सकता है। मैं आपको एक चीज बोलूं, क्लास 4 में मेरे को मैथमेटिक्स में 100/100 आया, और मैं वो पेपर को लेकर मेरा जितना ग्रैंडफादर जो सब मेरे ग्रैंडफादर भाई, मेरा मामा जी, मेरा ताई, ये सबके पास गया, सबको दिखा, पैसा कलेक्ट किया। 100/100 दादाजी 100/100 ले बेटा एक आना, उस जमाने में एक आना, वो सब लेकर सिनेमा देखता था और इडली खाता था। और पिताजी को पता चल गया मैं पेपर दिखाकर मैं पैसा निकालता। तो अगले बार मुझे पूछे माय डैड कि कितना आया रे मैथमेटिक्स में, मैं बोला पेपर नहीं मिला, बाकी सब बोल दिए, खाली मैथमेटिक्स का बोला नहीं। एक बार पूछे, सेकंड टाइम पूछे, थर्ड टाइम को जब पिताजी का रोल में जो कर सकते हैं वो कि माने नहीं, पर बोले कितना आया बोलते हो या जाऊंगा तुम्हारा टीचर के पास। हेड डाउन एंड आई सेड 35। वो बोले मुझे मालूम था तेरा 35 आएगा, गर्भ होने से खर्ब हो जाता है, जाओ जिसको तुमने ये पेपर दिखाया था दीवार स्टाइल में, वो बोले कि जाओ जिसको पेपर दिखा कर किया था उनको बोलो मेरा गर्भ हो गया तो वो खर्ब कर दिया भगवान, ये सब बोल के बोलना। पिताजी बोला आई वेंट टू एवरीबॉडी, और सबको दिखाया, एवरीबॉडी के भी बनी ऐसा बच्चा 8 साल का, उसका बाप इतना अत्याचार करता है। फिर सिनेमा देखा, फिर इडली खाया और आया घर में, पिताजी को मालूम हो गया, फिर पैसा निकाला। मैं बोला सोने से भी पैसा देते हैं, पैसे जाने से भी पैसा देते हैं, क्या ये सब है। और आते आते he has kept one copy book where 5 pages he has written in Odia that गर्भ करने से खर्ब होता है, and next 5 pages was that मैं झूठ नहीं बोलूंगा। So when you are writing, it remains in the God given computer forever, उसको डिलीट नहीं कर सकते। So गर्भ बोलने का वर्ड मेरा डिक्शनरी से चला गया, और you will be surprised, I cannot tell this, you will be surprised। क्लाइंट अगर झूठ बोलने के लिए बोलेगा तो बोलेगा मेरा तेरा केस ही नहीं दूंगा, मैं सच बोलूंगा
और उसके हिसाब से अगर तुम्हारा फेवर में जजमेंट है तो आई विल फाइट, दैट इज द वे, बट आई एम सक्सेसफुल। वो 33 साल में पैसा नहीं देता हूँ, किसी को नहीं देता हूँ, सीधा मैं इनकम टैक्स कमिश्नर के पास सब जो उनका ग्रुप होता है मैं बोलता हूँ पैसा कभी नहीं लिया है लोग को, लोग बात करते हैं आपका डिपार्टमेंट के ऊपर, पर मेरे से कोई नहीं लिया। ये 32 साल का प्रैक्टिस में सब बोल देता हूँ, तुमको भी अच्छा लगता है और मेरा भी थोड़ा सा ये हो जाता है। तो वो लोग बोले सावत साहब का फाइल है तो हाथ नहीं देना, क्योंकि वो गड़बड़ होने से वो फाइल नहीं रखेगा, अपना क्लाइंट्स को बेनिफिट मिलता है और अपना इमेज ऊपर में रहता है। So that is what actually I have been following. I hope that intention has been Yes, 54. What if it's my residential house? You have to stay there. Sir, हाँ बताइए। For section 54, what is the residential house? Sale of residential house and purchase of residence. So market rate by residential house, is it has to be discharged there or it is a building and all residences are there? No. He owns any house. हाँ, रेसिडेंशियल हाउस खरीदना आता है, उधर लिखा नहीं है रेसिडेंशियल हाउस के तुम रहेगा तो तुमको एग्जम्पशन मिलेगा। ये तो भाई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और एक घर भाड़े पे लेगा, ही विल पे भाड़ा 10,000 पर, इधर उसको 30,000 का भाड़ा आएगा तो क्यों क्या कर उधर रहेगा, ऐसा लाभ करेगा क्या? नहीं करेगा, फिर वोट नहीं आएगा ऐसा करने से। एंड ये भी प्रोविजन जाने वाला है, 2 हाउसेस है आजकल, आप अगर किसको दे देगा वो छोड़ेगा नहीं, फिर आप केस फाइट करता जाएगा, हम लोग चले जाएगा, उसके बाद अपना वो जो बेटा होगा बोलेगा क्या पिताजी एक भाड़े पे देकर लगा दिया आपको एक केस। ओके, सो डीम टू बी लेट आउट, ताला लगा के रखता है। मेरा तो बॉम्बे में फ्लैट है और एक फ्लैट है, तो बॉम्बे का फ्लैट को ताला लगाता हूँ, ओनली फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जाता हूँ। जब भी बॉम्बे ब्रांच में जाता हूँ कांदिवली जाकर खोलता हूँ है क्या घर या कोई कुछ किया उसके अंदर, तो मैं देखता हूँ है फिजिकल वेरिफिकेशन करके आ जाएगा। वे क्लाइंट लोग तो होटल में रखते हैं, घर में अकेला कौन रहेगा? सो दैट इज हाउ, बट यू हैव टू ऑफर फॉर टैक्सेशन बिकॉज द लॉ इज इफ यू हैव 2 हाउसेस, one house you are staying, another house lock किया तो it is deemed to be let out. Deemed to be let out में अगर लोन फोन लिया है deemed to be let out अच्छा प्लानिंग हो जाता है। Income from house property less 30%, less there is no limit for the purpose of interest deduction. नुकसान आया और उधर जो भी इनकम आया उधर से नुकसान चला गया, तो अच्छा टैक्स प्लानिंग है, क्योंकि इसको देगा उसके साथ जो देगा करने का, खाली फिजिकली देखने का प्लान है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सर आराम से बढ़िया प्लानिंग हो सकता है। Still sir another 5 minutes. एयर इंडिया की उड़ान से देरी से आने वाले लोगों को समय का जो नुकसान हुआ है, हमारे साथ में उसे सूद समेत वसूल करके वापस दिया है। और थी